Assalamu alaikum dear students. My name is Almin Faraz and I'm here to conduct your very first class of English communication skills. But before we start, could you please inform me if I'm audible and visible and you can hear me properly? Online students, can you confirm if you can hear me, if I'm audible? Alright, thank you so much. Thank you so much for that. Okay, so what we are going to do today? First of all, we are going to understand what this new course is, what ICAP is expecting from us, and how do we go about it. In today's agenda, we will talk about the syllabus, the whole orientation of this subject, and then we will try to proceed how we are going to study about this particular situation or this particular course. Before I proceed further, I do need a confirmation from you guys. Should it be like fully in English or should we convert into a bilingual situation? Urdu and English, okay. Online students, would you prefer entirely in English or should we go bilingual? As you wish. नहीं मतलब वो ख्याल में एहतराम में आप फंस नहीं जाए ना वहाँ पर. So though we are all very good at this, but let's go bilingual, right? Bilingual, okay. Thank you. So what we are trying to do here, we are trying to understand how to go about it. सबसे पहले let's understand what is this course, English Communication Skills. So one by one हम बात करेंगे कि ये पेपर है क्या और इसके एग्ज़ाम में ICAP हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. सो बिफोर आई प्रोसीड, सर मुझे बताएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्किल्स. स्किल्स क्या होती हैं और टैलेंट क्या चीज़ होती है? वो तो इंग्लिश, वो तो लैंग्वेज स्किल्स आ गई ना. स्किल एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट? Online students, you can also participate in this. Okay. So, sir, what I have understood, skill is something that you can learn, right? Skill is something that you can, learn by practicing or by constant exercises. On the other hand, talent is something which you can, which it's God gifted, which is given to you from heavens, right? तो ये वाला जो है हमें यहाँ पर स्किल सीखनी है. एंड देन कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? हाँ. ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है व्हाट इज कम्युनिकेशन? टू अंडरस्टैंड. ओके. Communication basically means there is a process of communication in which we have a sender. In this situation, मैं sender हूँ, मैं आपकी तरफ एक message कर रहा हूँ, send कर रहा हूँ. आप हैं recipient या receiver of that particular message. और अगर आप इस message को अच्छे से समझ लेते हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ वैसे ही उस message को आप समझ लेते हैं, तो that is a successful communication process. So communication is अपनी बात को sender तक उसी मीनिंग के साथ पहुंचाना जिस तरह आपने इंटेंट किया था, जिस तरह आपने इनकोड किया उसी तरह उसको लिसनर जो है वो डिकोड कर ले. दैट इज़ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन की टाइप्स होती हैं सर कुछ. हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकती है, हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकती है जो आपके पेपर में दोनों पोर्शंस हैं. हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है. व्हाट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल? व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? Let's start with informal first. जी. Okay. Exactly. So formal communication में do we know the person already? या उससे कोई वाकफियत होती है, उससे कोई बेतकल्लुफ़ी होती है पहले से? Formal communication. फॉर्मल में बेतकल्लुफ़ी, यू कैन बी फॉर्मल विद जज साहब, इनफॉर्मल में हो सकती है.
सही है. तो formal communication is something in which you have to be very courteous, very polite, and all the 7 C's of communication have to be like considered. So when you talk to your principal, formal, informal. Formal. When you talk to your friends, informal. अच्छा जी. अब हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन भी है इस पेपर में थोड़ी बहुत, और हमारे पास थोड़ी बहुत इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी है. तो दोनों चीज़ें टेस्ट हो रही हैं यहाँ पे. अच्छा जी. सेकेंडली हमने बात की वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, इज इट वर्बल? पहले तो ये बताओ, ओरल है रिटन है? ओरल कम्युनिकेशन है. मैं कुछ लिख के आपको नहीं दे रहा, मैं आपसे बात कर रहा. और कुछ कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है जो मेरे मुंह से निकलेंगे वर्ड्स या मेरे हाथ से लिखे हुए वर्ड्स निकलेंगे. दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. बोथ ऑफ देम आर लाइक ओरल एंड वर्बल, बोथ ऑफ देम आर वर्बल कम्युनिकेशंस. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? सर कोई ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें अल्फाज की जरूरत ना पड़े? लाइक ट्रू बट लेट मी अंडरस्टैंड दिस. मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन हैं, राइट? मैं आपसे एक बात कहता हूँ और वही बात सेम इधर आओ, मैं बहुत डेड टोन में कह रहा हूँ, मेरे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और वही बात मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के कह देता हूँ कि सर इधर आइएगा प्लीज़, राइट? सो थैंक यू सो मच, इधर आइएगा प्लीज़. तो जब मैंने ये बात की तो थोड़ा सा टोन चेंज हुआ, थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ, उसका मीनिंग चेंज हो गया, राइट? वन मोर वे ऑफ डूइंग दैट इज, हैव यू सीन ट्रैफिक सिग्नल्स, राइट? एग्जैक्टली. नो, द ट्रैफिक लाइट्स, रेड, ग्रीन एंड येलो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज वो आपको बोल नहीं रहे कि भाई तैयार हो जाओ, वो आपको बोल नहीं रहे कि चले जाओ, वो आपको एग्जैक्टली. तो दैट्स लाइक विजुअल कम्युनिकेशन, ऑल्सो फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अच्छा, क्या हमारे पास इस पेपर में ये सारी चीज़ें होंगी? यस, फेशियल एक्सप्रेशन, थैंक यू. क्या हमारे इस पेपर में सर हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होगी या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी? आपको क्या लगता है सर? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अभी हमने डिसाइड किया, इट्स द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, इट्स द लैंग्वेज ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस. तो एग्जामिनर ये चेक करेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, या एग्जामिनर ये देखेगा कि आप जो हैं वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं? आई डोंट थिंक सो सर. वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन चेक करेगा, वो आपकी टू बी मोर स्पेसिफिक रिटन कम्युनिकेशन चेक करेगा. वो भी अभी आगे आगे बात करते हैं. देन सर English. Sir, if you can speak English, I guess in the current times, in the scenario of Pakistan, you're one of the most successful people. और कुछ बहुत सीनियर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स जो है ना, वो ये कहते हैं कि जी इंग्लिश इज़ द करेंसी ऑफ पाकिस्तान. और मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ यार. देखो, नॉर्मली इंग्लिश एक लैंग्वेज है या एक स्किल है? लैंग्वेज है, लेकिन पाकिस्तान में समहाउ उसको एक स्किल की तरह ट्रीट किया जाता है ना. सी, लेट मी इंट्रोड्यूस अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ. आई कैन स्पीक 4 to 5 languages, alhamdulillah. I can speak fluent German. Ich kann sehr gut Deutsch sprechen. I can speak a little bit of French. Je parle un peu de français. But मैंने ये नोटिस किया है अपने एक्सपीरियंस में कि जब मैं किसी ऐसे ग्रुप में जाके जर्मन बोलूँ या फ्रेंच बोलूँ तो उनको लगता है ये बंदा पश्तो या पता नहीं कोई सराइकी ज़ुबान बोल रहा है, उनको समझ ही नहीं आती. दे डोंट फील वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट. But when I start speaking English and on top of that I add a bit of accent to that, they get impressed. They get super impressed. Oh, this is an educated person. He must be rich and whatever he is saying सही बात कह रहा है, right? So इस तरह की बातें जो है ना वो इंग्लिश को मिल जाती हैं, लेकिन किसी और लैंग्वेज को नहीं मिल पाती. सो इंग्लिश जो है सर वो हमारे पास क्या होती है, वो है तो लैंग्वेज, और पाकिस्तान में उसको एज अ स्किल ट्रीट किया जाता है. सर एक और एग्जांपल देखते हैं. CSS में एक पूरा पेपर होता है सर जिसको कहते हैं इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन. सर इन 2 पेपर्स का मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश आती है
तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है. यू कैन नॉट गेट टू दैट करियर प्रोग्रेशन. सर CA के पेपर्स, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट दीज पेपर्स यू हैव टू डू दैट इन इंग्लिश, अदरवाइज मसले ख़राब हैं सर आपके. जस्ट लाइक ट्रू. अच्छा, अब किसी भी लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम कहते हैं CEFR, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंसेस. उसमें हमने लैंग्वेज को डिवाइड किया सर 6 लेवल्स में, जिसको हम कहते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2. मैंने जर्मन जो है वो B2 तक पढ़ी, मैंने फ्रेंच जो है वो A2 तक पढ़ी. इंग्लिश मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें आई वुड रेट माई सेल्फ समवेयर अराउंड C1 to C2. लेकिन आपका जो ये पेपर है वो सर चलेगा कहीं B1, B2. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ B1, B2. जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो हमारे पास आता है सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक लेवल आता है वो होता है A1. A1 में आपको सिखाया जाता है कि जी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करा लेंगे, आप अपना ये बता देंगे कि जी कि हम रहते कहाँ पर हैं, किसी से एड्रेस पूछना हो, किसी से डायरेक्शंस पूछनी हो, टाइम शाम बताना हो, तो दिस इज़ ओके इन A1. A2 में थोड़े से लॉन्गर सेंटेंसेस. B1, B2 में आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लेवल पे आ जाते हैं और आपका ये जो पेपर डिज़ाइन हुआ हुआ है वो B1, B2 के लेवल पर डिज़ाइन हुआ हुआ है. अभी आप हम सॉल्व करके देखेंगे भी. दैट इज़ द मेन हाईलाइट, दैट इज़ द मेन चंक ऑफ दिस क्लास टुडे. ये सारी जो बातें कर रही हैं सर, अभी तक इसका पेपर से कोई लेन देन नहीं है, अभी हम पेपर पे आने वाले हैं. तो जब इंग्लिश के किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास होते हैं 4 मीडियम्स. कौन कौन से 4 मीडियम्स होते हैं सर? 4 मॉड्यूल्स कह लें, 4 मेथड्स ऑफ लर्निंग कह लें, 4 मेथड्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन कह लें. ट्रू. सो वी कैन शेयर, वी कैन कम्युनिकेट अगेन in English or in any other language. We can do that through 4 different ways, and those 4 different ways, let me write it down here with you. Okay, so we can write something and we can speak something. Similarly, I'm making a combination of these two together. Why am I separating these two together? Because these are the 2 methods in which you can give or share information. You can give or share your information through these 2 methods. Yeah? Similarly, you can read something and you can listen something, and these are the methods where you can absorb or take information. Take or absorb information. Alright? Now, अब मैं बोलूँ कि जी आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आपका कोई वर्ड बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, या यू नॉट फ्लुएंट इनफ, तो ये सर पेपर से बिल्कुल दूर दूर तक बात है. क्योंकि पेपर आपका सिर्फ आपको असेस कर रहा है 2 चीज़ों पे सर. क्या, किन चीज़ों पे सर? पहली है आपकी रीडिंग एंड दूसरी है आपकी राइटिंग. सो दीज आर दी ओनली 2 थिंग्स दैट एग्जामिनर इज़ इंटरेस्टेड इन. उसने आसान कर दी थोड़ी सी हमारी ज़िंदगी. उसने हमें स्पीकिंग का कोई पंगा नहीं डाला यहाँ पे. उन्होंने कोई लिसनिंग का सीन नहीं किया जो किसी भी लैंग्वेज एग्ज़ाम में होना चाहिए, होता है. जैसे IELTS, TOEFL, TOEIC, TESOL, हर जगह पर आपके ये चारों मॉड्यूल्स टेस्ट होते हैं. ठीक है जी. हमें किस चीज़ की सिर्फ फ़िक्र करनी है? हमें सिर्फ इस चीज़ की फ़िक्र करनी है. अच्छा, when it comes to reading and writing, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा आसान क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? सर, रीडिंग वर्सेस राइटिंग. सर राइटिंग ज़्यादा आसान लगती है, और बाकी लोगों को थोड़ी सी सर तकलीफ दें, हाथों को थोड़ा सा टाइप शाइप कर दें, मेरी आपके साथ इंटरेक्शन होती रहे, खाली वीडियो समझ के मत चलेंगे. अच्छा जी, रीडिंग. तो रीडिंग के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यार. यहाँ पर एग्जामिनर ना आपको रीड करने को नहीं कह रहा है. वो वाला मामला नहीं है कि आप डॉन पकड़ेंगे या कोई न्यूज़पेपर पकड़ेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट स्टार्ट रीडिंग दैट. एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप एक चीज़ को रीड तो करें लेकिन साथ साथ कॉम्प्रहेंड भी करके देना है. कॉम्प्रहेंड मतलब अंडरस्टैंड करके देना है.
लेट मी ऐड सम स्लैशेस हियर, अंडरस्टैंड करके दे दें सर, ठीक है जी। मतलब क्या कि एक पैसेज गिवन होगा आपको और उस पैसेज को देखने के साथ साथ आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन किसने कही, कौन सी बात किस पैराग्राफ में हुई हुई है। सो इन्फॉर्मेशन लोकेशन एक तरह से हमसे करवाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, राइटिंग में क्या क्या हो सकता है सर? राइटिंग में शॉर्ट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं, और सर इसके साथ साथ जो अभी तक हमें नज़र आई है वो ईमेल्स या रिपोर्ट्स टाइप की चीज़ नज़र आएगी हमें, ठीक है। सो एक दफ़ा क्विक रिस्पॉन्सेज, यस, एक दफ़ा हम इसको रिवाइज करते हैं छोटा सा और फिर हम देखते हैं। सर अभी तक हमने बात की कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पेपर है हमारे पास, इसमें हमारे पास है सर रीडिंग है और सिर्फ राइटिंग है। सर वी आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हमने अभी एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेनी है। हमने अभी तक देखा कि स्किल्स क्या चीज़ हो सकती हैं, समथिंग दैट वी कैन लर्न, और हमें यहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न करना है। कम्युनिकेशन क्या हो सकती है सर? कम्युनिकेशन एक मैसेज को एक बंदे से दूसरे बंदे तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक पहुँचाने का नाम कम्युनिकेशन है। हमें ये कम्युनिकेशन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में करनी पड़ेगी, और इंग्लिश में भी दो तरीके से, या तो एग्जामिनर हमसे कम्युनिकेट करेगा थ्रू थ्रू रीडिंग, एंड वी विल हैव टू एब्जॉर्ब और अंडरस्टैंड दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू रीडिंग, या हमने उस मैसेज को एक सिचुएशन दी हुई होगी और हमें वील हैव टू रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। अब सर इसको खोलते हैं और आगे चलते हैं। ये सर हमारे पास जब आप यहाँ पर आते हैं ICAP की वेबसाइट पे, so you get to see there is a whole tab. If you have your CRN, if you are a registered student, then you can open it up. आप क्या करेंगे सर? आप आएंगे यहाँ पे और खोलेंगे प्रैक्टिस टेस्ट्स को यहाँ पर, और सर PRC को छोड़ देंगे, CAF को छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, और खोलेंगे हम अपना खोलेंगे सर ये ECS को। जब ECS खोलेंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स खोलेंगे, तो हमारे सामने we will have this screen. We will have a syllabus and we will have a practice test. See, I personally believe कि खाली syllabus पढ़ने से ना आपको वो information नहीं मिलेगी, खाली मेरी बात सुनने से या किसी की बात भले वो 2 घंटे भी आपको समझाता रहे। When you experience something, when you walk the way, then you get to understand what the real matter is. कि भाई किस मोड़ के बाद कौन सी चुरंगी है, किस जगह पे दरख्त है, किस जगह पे माइलस्टोन लगा हुआ है। भाई मैं कितना भी आपको सुनाऊँ यार, हैदराबाद के रास्ते में ना DHA भी आता है, हैदराबाद के रास्ते में बैरिया भी आता है, लेकिन जब तक आप वहाँ पे चलोगे नहीं, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक वो वाली बात नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी। तो अब सर हम वो फीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने खोला सर इस प्रैक्टिस टेस्ट को, यहाँ PDF पे क्लिक किया, सो हमारे पास ये 3 पोर्शन खुलेंगे, ठीक है जी। ओपन लिंक एंड देन वी विल गेट टू, बल्कि ये देखें हम, ये हमारे पास 3 चीज़ें खुलेंगी। एप्टिस पहला सेक्शन है जी, जो सबसे छोटा है, सबसे कम टाइम लेगा, उसको हम कहते हैं जी जनरल कोर टेस्ट। इसमें कोर क्या होती है किसी भी लैंग्वेज की सर? आपकी वोकैबुलरी और आपकी ग्रामर, राइट। अच्छा, वोकैबुलरी में भी लोग क्या करते हैं? अंधाधुंध रट्टे मारते हैं, लिस्टें याद करते हैं। वी विल नॉट डू दैट, वी विल ट्राई टू गो थ्रू इट वेरी ऑर्गेनिकली। हम एक अलग मेथड लेके चलेंगे, वी विल डिस्कस दैट लेटर, और ग्रामर का भी हम एक अलग से सिनेरियो चलाएंगे। देन आफ्टर दैट यू हैव सेक्शन 2, इफ यू कैन सी दैट हियर। सेक्शन 2 हैज़ 35 मिनट्स, जो बहुत डूएबल है, बहुत अचीवेबल है सर। इसमें छोटे शॉर्ट आंसर्स होंगे, आपने रीड करना, आपने या तो इन्फॉर्मेशन को असेंबल करना होगा, सही जगह पर सही इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, या आपने कोई छोटा सा रिस्पॉन्स दे देना। सर पहले वाले में 25 मिनट, इसमें 35, एंड देन द लास्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर व्हिच इज फॉर 50 मिनट्स, एंड हियर यू हैव टू एक्चुअली टाइप योर आंसर्स। इट इज़ अ CBE पेपर, सो यू हैव टू टाइप योर आंसर्स। पहले 2 सेक्शन में अभी तक कोई टाइपिंग नज़र नहीं आ रही है सर। यहाँ तक साथ है मेरे? जल्दी से क्विक थम्स अप, यस नो कुछ कर दें, और फिर हम आगे चलें।
ठीक है. Okay, now once you are on this page, what I want you to do is that click on this, right? और अभी के लिए सर मेरे साथ अपने आपने पेन्स एंड पेपर्स लेके बैठना और जो मैं बोल रहा हूँ सर वो लिखते जाना, यानी हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पकड़ना है. So sir, you start your assessment. मुझे बताइएगा स्क्रीन अभी भी विजिबल है? ठीक है जी. ओके सर, ये बहुत ही मासूम सा पेपर है सर. ये देखें जी. आई एंजॉय वर्किंग ऑन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स एट वर्क. सर इसका आंसर होता है सो डू आई. नेक्स्ट आंसर से मैं आपसे पूछता हूँ, मशवरा लेके बात करते हैं. साथ में सर लिख लें ये टॉपिक कहाँ से, ये है टेंसेस का टॉपिक. तो टेंसेस हमने पढ़ना है. ठीक है जी, ये लिखते जाइएगा साथ साथ और फिर हम आगे चल रहे हैं. चलो let's move to question number 2. We could cook dinner. Dash, we could buy some takeaway food. So sir, A, B or C? A? Sir, it is B. On the other hand, sir इसको लिख लें सर conjunctions, इनको लिख लें adverbs. दूसरा टॉपिक ठीक हो गया सर. तीसरा टॉपिक, in those days my father dash never eat dinner after 8 o'clock. क्या होना चाहिए सर? A, B और C? So this is C. Yes. और टॉपिक लिखेंगे क्या? मॉडल वर्ब्स. ये चले मैं साथ साथ आपके लिख लेता हूँ. सर हमने अभी तक क्या किया? टॉपिक्स या ग्रामर टॉपिक्स पहले वाले. तो हमने कहा जी टेंसेस से है पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन कहाँ से था? कंजंक्शन से था सर, या हम इसको एडवर्ब्स भी कह सकते थे. और तीसरा हमने लिखा मॉडल वर्ब्स. ठीक है जी. अच्छा जी, आगे बढ़े सर. यूज टू आ गया. 3 टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए. मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला सर. जो टॉपिक हमें एग्जामिनर दे रहा है, जो हमें आई कैप दिखा रहा है सर, हम वो लेके चल रहे हैं. ही फिनिश कुकिंग व्हेन वी अराइव्ड. ए, बी और सी? Waiting for your answer. तो सर he had finished is absolutely correct. ये सर past perfect का tense हो गया. tenses हमने already लिखे हैं. We don't need to write that again. Sir, if you were a better cook, you सर you अतर भाई गलत हो गया ये आपका आंसर. सर you wouldn't is the right answer. और इसको लिखेंगे सर हम नया टॉपिक जिसको हम कहेंगे कंडीशनल्स. कंडीशनल्स में भी ये कौन सा है? टाइप 2 कंडीशनल है सर. सारी पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी देख लेंगे. टाइप 2 टॉक्स अबाउट सब्जंक्टिव मोड विच इज़ अ मेथड ऑफ टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशंस. अगर तुम ये कर लेते तो ऐसा ना होता, समथिंग लाइक दैट. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. देयर वर जी सर सी फ्यू. सर देन है तो फिर तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए ना, पहले से कम पहले से ज़्यादा. तो सर ये होना चाहिए फ्यूअर. सर यहाँ पे लिखेंगे काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स और सिंपली लिखेंगे हम नाउन्स को. ठीक है जी. आगे चलो. अच्छा जी. द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. ए, बी और सी? तो सर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पास्ट का कनेक्शन है. तो सर ये हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, जो कि टेंसेस में आता है. वी डोंट नीड टू डू दैट अगेन. टेंसेस हमने सारी पढ़ने. पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस एक्चुअली. ठीक है जी. I wish it dash the time of the year when I could go on holiday. जी भाईजान. सर ये है फिजिकल से तो जवाब आ गया जी. ऑनलाइन का इंतज़ार हो रहा.
सर बी इज़ द करेक्ट आंसर सर। बी क्या होता है सर? ये है अगेन सब्जंक्टिव कंडीशनल टाइप 2 अनरियल सिचुएशन। काश ऐसा होता। यस, वुड दैट वाला सिचुएशन। यस, वी हैव गॉट द अर्ली ट्रेन। वापस से मॉडल वर्ब्स आ गई सर। तो सर ये है वी। बी मस्ट सर नीडंट हो गया ए। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर में कंफर्म भी करते हैं। चलें जी। दैट मैन सो अनरियल यू कांट ट्रस्ट हिम। डैश उसी का एक्सटेंशन है, तो क्या बोलेंगे सर? सर ए बी सी। ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप भी साथ साथ चल रहे हैं। उमर भाई गलत हो गया ये आंसर। फ्रैंकली आई वुडंट वर्क विद हिम, राइट? आपका जो एडवर्ब है वो शुरू में आना चाहिए ना, एडवर्ब ऑफ ओपिनियन। ओके जी। गो डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट सर। सो ए बी सी। गो ऑन सर। गो एट, ये तो अजीब ही हो गया सर। गो टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट सर। सर इसको लिखें, इसको कहते हैं हम प्रपोजिशंस। तो अभी तक वो वाली फीलिंग आ रही होगी जैसे एक एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी यूनिवर्सिटी का। तो आई कैप ना, मुझे लगता है पर्सनली कि आई कैप को लगता नहीं है कि यार ये जो बच्चा इंटर ए लेवल्स करके आएगा ना, ये अभी उस काबिल है कि ये जाके कैफ और सीसा के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन समझ सके। तो उन्होंने ना एक एंट्रेंस एग्जाम टाइप की सिचुएशन यहाँ पर रखी, जो मुझे लगता है, आई कैन बी रॉन्ग अगेन। अच्छा जी, देन इंतहाई आसान सवाल है सर। इसमें तो फ्री के मार्क्स बोलें सर। सर बी, वुड यू लाइक। देखें एक तो हाँ, वुड यू लाइक, कर्टेसी सर। मॉडल वर्ब्स आ गई वापस सर। देन वी हैव, आई थिंक इट इज राइट, लगा दें सर। सर ए बिल्कुल ठीक है सर। हाउ मच, ये सर प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन आ गया, तो टेंसेस वापस आ गए हमारे पास। हाउ मच डज द ट्रेन टू सैंटियागो कॉस्ट? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, द फिल्म स्टार्ट्स सर। प्रपोजिशंस साथ भाई अथर जल्दी से सर। एट, तो क्लॉक टाइम्स को बताने के लिए प्रपोजिशन सर वापस आ गए हमारे पास। देन वी हैव ही, सिंगल, ही, नेवर। He got out of the matrix, huh? Okay, he never married is the correct answer, sir. Yes, past simple आ गया जी। tenses वापस से repeat हो गए। She reads every day, conjunctions सर वापस आई हैं हमारे पास। तो जब कोई स्टेटमेंट हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो हम लगाते हैं एंड। तो सर उसी को कंटिन्यू है ना, ही इज स्मार्ट एंड ही इज रिच ऑल्सो, है ना। सो तो क्या आना चाहिए सर? बट आना चाहिए सर। सीरियस तो है वो, सॉरी पढ़ती रोज है लेकिन सीरियस नहीं है, तो लेकिन वाला फीलिंग ना, बट कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, ये है जी प्रेजेंट सिंपल, फिर से इंतहाई आसान, फ्री के मार्क्स। तो ये आ गया जी ए। अच्छा जी, विलियम सर। नाउ, नाउ का मतलब है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सर। तो ही इज लिविंग हो गया जी। देखें अभी कितना टाइम है हमारे पास, अगर सुकून से खेलते रहें तो इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग इट्स सफिशिएंट टाइम टू हैंडल दिस। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी, आई एम लॉस्ट सर। मॉडल वर्ब्स आ गई वापस जिंदगी में, तो कुड यू प्लीज हेल्प मी? तो आ गया सी, पोलाइट रिक्वेस्ट। हाँ अच्छा जी सर, ये हो गया अतर भाई, आई होप ठीक है जी। यू हैव टू डू योर होमवर्क सर। हैव टू इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मस्ट। मॉडल वर्ब्स का ही क्वेश्चन फिर से आता है।
मस्ट कब यूज़ करते हैं? जब हमारे अंदर से इंटरनली कोई चीज़ निकलती है, यार आई मस्ट एक्सरसाइज, इंटरनल कन्विक्शन होती है। हाँ, और जब डॉक्टर बोले ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हालात ऐसे हो जाए कि नहीं यार अब वी हैव टू डू दैट, तो सिचुएशन जब डिक्टेट करे तो हैव टू। आई हैड ए शावर। सर एडवर्ब ऑफ टाइम आ चुका है हमारे पास, क्या लिखेंगे? तो सर देन आ गया वहाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सर आई, हाँ, लॉन्गर एंड शॉर्टर एक्शन, ये है सर आपका टेंसेस का क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है सर। आई, ए तो नहीं होना चाहिए इसका आंसर। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जी सर, बी सर, आई डिडंट यूज टू स्विम, बिल्कुल ठीक है जी। मॉडल वर्ब्स वापस आ गए सर। आई जस्ट हर्ड दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, इंतहाई आसान, सिंपल सर। स्टीलिंग अ कैंडी फ्रॉम अ बेबी, यहाँ से सर हमारे आते हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन, यानी एंड के 4 क्वेश्चन जो आगे पीछे हो सकते हैं इन दी एक्चुअल पेपर, लेकिन ये बहुत आसान है सर। आपने क्या करना है जी, सिलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम ईच ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द राइट दैट हैज़ द सेम और वेरी सिमिलर मीनिंग। तो सिनोनिम्स का क्वेश्चन सर, बिग की जगह क्या आ गया? लार्ज आ गया सर। स्टडी की जगह क्या आना चाहिए सर? रीड आना चाहिए। आगे सर, रिसीव की जगह क्या होना चाहिए सर? सर गेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। स्टार्ट की जगह क्या होना चाहिए? कमेंट्स होना चाहिए। नहीं सिनोनिम चाहिए, तो बिगिन है कहीं लिस्ट में जी? बिगिन है, हाँ। नहीं, टॉक की जगह सर, ये देखें मेरे दिमाग में कन्वर्स आ रहा है, लेकिन वो C1 का वर्ड है, यहाँ पे सर हमें B1 चाहिए, तो स्पीक लिखा हुआ है कहीं। अच्छा जी, पिक की जगह सर ऑप्ट होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए, चूज़ होना चाहिए, तो चूज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे सर? हम सिनोनिम सीखेंगे। ये लिख लें सर, मैं भी लिख लेता हूँ आपके साथ। वोकैबुलरी में हमने क्या करना है? सिनोनिम्स करना है। अच्छा, अब सिनोनिम ऐसी चीज़ है या वोकैबुलरी ऐसी चीज़ है, अगर आपने वही रट्टे वाले तरीके से याद किया ना, डेली के 10, डेली के 15, डेली के 20, वो कभी भी ना आपका फंक्शनल नहीं बन पाएगा। आप आज याद करोगे, पेपर तक आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। यू विल नेवर बी एबल टू यूज़ इट इन योर राइटिंग। तो हम ये नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट ईच डेफिनेशन यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। सर ये भी सिनोनिम्स ही हैं। टू कवर विद द पेपर और मटेरियल इज टू, क्या होना चाहिए सर? एनगल्फ होना चाहिए, रैप होना चाहिए, ठीक है। टू इम्प्रूव और चेंज इज टू एनहांस, इज टू अपग्रेड, इज टू, जी सर, मॉडिफाई, ओवरहॉल। देखें ये सारे लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो है नहीं इस लिस्ट में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? यहाँ होना चाहिए एडजस्ट, बिल्कुल ठीक है। टू स्टेट और मेक पब्लिक इज टू, जी सर, टू स्टेट और मेक पब्लिक इज टू अनाउंस, बिल्कुल ठीक हो गया। टू गेट समवेयर इज टू, सर ये हम बड़ा जुल्म करते हैं, एक वर्ड होता है रीच बोल बोल के, अब से हम बोलेंगे सर अराइव। टू पुट समथिंग टुगेदर, सर तो कैप्टन अमेरिका सेड एवेंजर्स assemble, yeah, good job sir. After this we move to the next question. अच्छा जी, more and more people go, सर मासूम सा सवाल सर, जी सर फिजिकल वाले। मोर एंड मोर पीपल गो फॉर देयर हॉलीडेज दीज डेज, तो ये हो गया सर अब्रॉड।
Sir, drivers need to remain क्या करेंगे सर, क्या रहना चाहिए ड्राइवर्स को? So drivers need to remain alert. The city has many, सर ये adjectives fit करा रहे हैं सर. Ancient is good sir. अच्छा जी, she is highly person who explains things clearly. तो इसके लिए सर आंसर होगा, क्या होगा? एक्यूरेट नहीं सर, ये हो जाएगा आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट होता है जो एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से प्रोनाउंस कर सके. आर्टिकुलेशन, कायदे आज़म हैड वेरी गुड आर्टिकुलेशन. या जो लीगल लैंग्वेज होती है, जो जजेस लिखते हैं, उसमें जो आर्टिकुलेशन है वो बहुत मज़ेदार होती है. काइंड ऑफ जैसे आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी में बोलते हैं ना, एक हर्ड का अलग से पूरा दुकान खोल के बता दें कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली. यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल. अच्छा जी, ही इज़ अ वेरी डैश पर्सन. सर ये तो आसान है यार, ये तो सारे ही हम लोग. अग्रेसिव, ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल सही है. सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास. आप क्या करना है जी, सेम और वेरी सिमिलर. टाइम टेबल की जगह हम क्या बोलेंगे सर? सिनोनिम सर. सर इसको हम स्केड्यूल भी बोल सकते हैं, शेड्यूल भी बोल सकते हैं. विच वन इज बेटर? बिल्कुल. अच्छा कौन सा लगता है बोल? दैट्स ट्रू. बिल्कुल सही सर. हमें ना पेपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप शेड्यूल बोलो, आप स्केड्यूल बोलो, पेपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर. स्पेल सही कर लेना है भाई. ठीक है जी, ओके जी, ओके. सर हम लेके चले स्केड्यूल को. रिवॉर्ड की जगह क्या होना चाहिए सर? प्राइज होना चाहिए. सर आप तो जीनियस हो गए माशाल्लाह. QUEUE की जगह होना चाहिए सर लाइन. यहाँ तक अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ सर, ये है अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश वोकैबुलरी अभी तक. तो लाइन किधर है सर? लाइन कहाँ गई? ये रही लाइन. सर फेज की जगह क्या आ जाएगा? स्टेज आ जाएगा. और एरर की जगह क्या आ जाएगा? मिस्टेक आ गई सर. सर देन वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. अच्छा जी, कुछ नाउन जो ऐसी होती हैं जो एक साथ चलती हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स. मदर इन लॉ, सेल फोन. मतलब सेल मोबाइल नहीं बोल सकते आप, अच्छा मतलब इट डजंट फिट, राइट. बैंक नोट, इस तरह की चीज़ें. सो सर बिग हाउस. देन वी हैव एरोबिक्स. एरोबिक्स की जगह आ गया sir. Aerobics is a form of an exercise where you have to move. So I don't have any answers from online students. Physical students क्या आना चाहिए एरोबिक्स की जगह? एरोबिक सीट, एरोबिक मिनिस्टर, एरोबिक सीप, एरोबिक सेल्समैन. सर एरोबिक क्लासेस होना चाहिए सर. ठीक है जी. एग्रीकल्चर क्या होता है सर? सर एग्रीकल्चर सीट नहीं हो सकती. सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर. सर आयल क्या होता है जी? ये आपका जो पोर्शन होता है जहाँ से आप चल के जाते हो, सिनेमा में, चर्च में, या शॉपिंग स्टोर में, राइट. तो इसको हम क्या कहते हैं जी? आयल. एरोप्लेन में प्लेन की सीट्स होती हैं ना, एक होती है विंडो सीट. ट्रू. तो हम क्या बोलेंगे सर? आयल सीट लेके चलेंगे. आयल सीट ही वाली सीट होती है. प्लेन में आप बैठो ना कभी, तो आयल सीट लोग पसंद नहीं करते क्योंकि हर आता जाता बंदा ना टकरा रहा होता है, या दे एल्बो यू. ट्रू. सो आयल सीट. In buses too, yes. A lot of things are happening during that.
ओके जी, एप्रन की जगह क्या होता है सर? एप्रन सर, हम तो मतलब पाकिस्तान में खाना बनाते हैं तो हम कुछ भी पहन के बना लेते हैं, शॉर्ट्स, टी शर्ट, लेकिन वैसे यू पुट एन एप्रन ताकि आपके कपड़े ख़राब नहीं हों। तो एप्रन के क्या होते हैं सर? एप्रन के होते हैं धागे। ढूंढने सर धागे क्या हैं? एप्रन स्ट्रिंग्स। अच्छा जी, फैमिली, सर आप समझते हैं? फैमिली ट्री, ज़बरदस्त है, बिल्कुल सही है, फैमिली ट्री, ज़बरदस्त, नादरा चलेगा आप पर। अच्छा जी सर, वाज दैट डिफिकल्ट? देखिए हमने बहुत आराम आराम से स्लो स्लो सोच सोच के किया और हमें अभी भी 4 मिनट बचे हैं। सो हाँ जी, 5 मिनट्स बचे हैं बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस वाज इजी, दिस वाज डिफिकल्ट? एवरेज, इजी, ठीक है। शायद आपके लिए, मेरे लिए आसान हो, आप लोग के लिए भी आसान ही होना चाहिए, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एग्जामिनर चाहता है कि आप पास हो यार। अच्छा जी, हाँ, आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। ओके सर, फिर हम गए यहाँ और हमने दूसरा और इसी तरह खोला सर, दूसरा सेक्शन हम देखने के लिए गए तो उन्होंने कहा जी प्रैक्टिस टेस्ट, हमने लिंक खोला। अच्छा, आंसर जो जो आपने मार्क किए थे ना सर, वो देख लीजिएगा, हम थोड़ी देर में उसको भी चेक करते हैं। अच्छा, वोकैबलरी में जब तक ये लोड हो रहा है सर, वोकैबलरी में हमारे पास थे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओके, एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, चलो बाद, नो नो मेटाफोर्स इन दिस वन, ओके, चलो बाद में करते हैं, इट्स नॉट गिविंग मी, ओके सर, it has loaded, okay, sir, then we have the second section sir। इसमें क्या होगा सर? इसमें होंगे हमारे पास शॉर्ट आंसर्स, तो आपने कुछ पढ़ना और आपने कुछ टाइप, अभी फ़िलहाल टाइप नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन असेंबल करनी है। तो रीडिंग आ गई से हमारे पास, चलें जी, तो ये सर स्पीड में करते हैं थोड़ा सा। एक मेल लिखी हुई है, इनफॉर्मल मेल लिखी हुई है क्योंकि फर्स्ट नेम यूज़ किया है मैं। डियर सैली, Tim and I are on holiday in Greece. We have a nice view of the sea from our hotel. The weather is great and it's really hot. Yesterday we went on a, बताएं सर, फिर से सर ग्रामर आ गई हमारी ज़िंदगी में वापस। Sir, we went on a boat on the lake and caught some fish. We had lunch and then we visited an old town. Very nice. Tomorrow we are going to take a car and drive around. बिल्कुल ठीक है जी, फिजिकल वाले भी साथ साथ। We are going to visit some शॉप्स। तो सर ये आ गया सर हमारा पहला क्वेश्चन, आगे बढ़े सर। अच्छा जी, ये है सर आपकी इंफॉर्मेशन असेंबल करनी है आपने, यू हैव टू पुट these pieces of information in the right order. The sentences below are from a report, तो report writing आ गई सर। Put the sentences in the right order. The first sentence is done for you, signs on the coast road, title है this report gives information about the traffic problems on the coast road। सर ये 5 pieces हैं, सबसे पहले क्या आना चाहिए? For this reason it is easy for them to take a wrong turn and get lost। No, this will help visitors to find their way to our beautiful town। नहीं, this road is busy during the summer when the tourists visit the area। I think it should sentence construction, sentence putting in the right order। यहाँ ये ठीक लग रहा है अभी तक? बताएं जी।
ओके, दे डोंट नो द रोड, ओके ठीक है जी, दे डोंट नो द रोड बिकॉज मैनी ऑफ देम आर हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज वाई वी थिंक देयर शुड बी मोर साइंस ऑन द रोड। चलें जी, नंबर 2, व्हाट शुड बी ऑन नंबर 2? ये वाला, दिस वन, नहीं अभी मुझे उसका ना टाइटल एक दो वर्ड लिखना है सर, दीज विल हेल्प विजिटर्स। अच्छा चलें, आप कह रहे हैं ये लगाएं, यहाँ पे लगाते हैं सर। दिस रोड इज़ बिजी ड्यूरिंग द समर व्हेन द टूरिस्ट्स विजिट द एरिया, आई थिंक दिस शुड कम हियर यार, सही है। अच्छा जी, for this reason it is easy for them to take a wrong turn. Does this fit on the third position sir? मतलब इसके बाद, ठीक है जी, ये हमने लगा लिया यहाँ पे सर, कहाँ गया, ओके सॉरी फॉर दैट, ये आ गया यहाँ, इसको मैं रखा इधर, ठीक है जी। अच्छा जी सर, देन these will help the visitors to find way to our beautiful town। सर नंबर 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर, अरे ये आ गया यहाँ, and then we have the last one right here, so pick it up and we fit that right here। अच्छा जी sir, do you think this is the right order of information? So this report gives information about the traffic problems on the post road. This road is busy during the summer when tourists visit the area. They don't know the road because many of them are here for the very first time. This is why we think there should be more signs along the road। नहीं सर, गलत है सर, एक चीज़ गलत है सर, हमें ये लगता है कि ये वाली जो चीज़ है ना सर, इसको आना चाहिए यहाँ, ये दिस वन, ठीक है। और सर दिस शुड बी हियर एंड देन दिस शुड गो हियर। अब चेक करें सर, अवेश भाई check the information। This road is busy during the summer when tourists visit the area. They don't know the road because many of them are here for the first time. For this reason, it is easy for them to take a wrong turn and get lost. This is why we think that there should be more signs along the road. These will help visitors to find their way to our beautiful town। Do you think that this is the right order of information? बताएं जी। अविश भाई, ठीक है जी, is this the right order? सर की क्लास में ऑफिस से ले रहे हैं, ऑफिस से ले रहे हैं, no, is this the right order of information? अच्छा, एक उमर भाई कह रहे हैं कि लास्ट और सेकंड लास्ट को स्विच करना है, एक दफ़ा देख लें जी। We can जी, should we change the last and second last? ये
ओके ओके यस आप ठीक है नो ऑलराइट दिस इज द करेक्ट वर्जन अभी देख भी लेते हैं थोड़ी देर में अच्छा जी इफ वी आर सेटिस्फाइड विद दिस वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके जी instructions for office visitors if you're visiting our office for the first time please follow these instructions a member of staff will write this information nahi before you leave please return nahi you can use the card that's not correct next means that this is followed by some other step so we should not use this in the very first go तो सर हमारे पास बचा यू शुड गो टू द फ्रंट डेस्क अपॉन अराइवल एंड गिव योर नेम एंड एड्रेस ये ले लें जी ये हम लेके आते हैं फर्स्ट गो पर ठीक हो गया जी अच्छा जी एंड गिव योर नेम एंड एड्रेस नेक्स्ट ही और शी विल गिव यू अ विजिटर्स आइडेंटिटी कार्ड ये ले लें जी ये हम रखेंगे यहाँ क्योंकि बीच में उसने लिखना भी है कहीं A member of staff will write this information in the visitors book यहाँ then before you leave you can use this card मिल गया जी identity card हमें यहाँ थर्ड पे मिल गया so we go and put this here and then this one should be at the bottom right Here we go. Check it out, people. Physical and online. Is this the right order of information? Rajesh bhai, check कीजिएगा. ठीक हो गया चल ऑनलाइन से तो गवाही आ गई है ठीक है ठीक है ठीक है जी आगे बढ़े सर हम अच्छा जी अब सर ये आगे थोड़ा आइल्स के लेवल का काम आपने इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और आपने नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना ठीक है जी ये वाला मामला जस्ट लाइक प्रेसी में तो आपको कंसाइज करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओके तो आइल्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टॉफल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम उसको बोलते हैं मैचिंग द हेडिंग या स्पीकर आइडेंटिफाई द स्पीकर हियर वी आर डूइंग द सेम थिंग हु थिंक्स यू शुड स्टडी अच्छा सबसे पहले ना इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं सर दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस दैट पीसेस ऑफ एडवाइस दैट आई कैन गिव यू सो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं Who thinks you should study when you are older? तो age related एक question है. Who thinks formal qualification are too expensive? Who thinks you should go to a university when you are young? Who thinks you should study independently? Who thinks you should combine a job with studying? Who thinks you should choose a course that is practical? Who thinks you should get a job immediately after leaving school? तो सबसे पहले सर ओल्डर वाला मामला ढूंढते हैं अच्छा जी As you get older, responsibilities like a job and family dominate your life. It can be hard to balance things. Studying at a university is demanding, so you should do it at an age when you are independent and carefree. ये important बात है जी. It is important to learn how the world of business works. Spending unpaid time in a company is a great way to get the experience. Any course that can give you an opportunity to do that is worth considering. तो इन्होंने कहा कि जी छोटी एज में कर लें राइट हाँ जब आप इंडिपेंडेंट हैं केयर फ्री हैं द एग्जैक्ट वर्ड इज़ नॉट गिवन देयर बट सिनोनिम्स आर देयर अच्छा इन्होंने सर ये वाली बात नहीं बोली है इन्होंने ये वाली बात भी नहीं बोली है So who thinks you should go to the university when you are young? So I will go with Petra.
सही है सर ये वाला? एक दफा फिर देखना। या ठीक है सर, 4 पे भी आते हैं, पहले ये बताएं नंबर 3 को कंफर्म करना है और इज इट ओके? ओके जी चलें, ओके। सर फिर उन्होंने कहा इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस वर्क, स्पेंडिंग अनपेड टाइम इन अ कंपनी इज़ अ ग्रेट। ये वाली बात सर उन्होंने इंटर्नशिप की बात की। इंटर्नशिप इज़ वन अनदर वे ऑफ सेइंग अनपेड लेबर, अनपेड वर्क। तो क्या ये वाली बात भी पेत्रा के लिए फिट होती है? बताएं जी। पेत्रा, पेत्रा इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा जी, एनी कोर्स दैट कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट इज वर्थ इट। एंटोनियो पढ़ते हैं सर। एंटोनियो कहते हैं लाइफ डजंट रियली गेट सीरियस until you hit your mid 20s. Before that, try out different things and get some life experience. It's only as you approach your 30s, ये older वाली बात मिल गई सर हमें, that you need to get serious about your career. That's the time to start thinking about your further education. Many colleges offer inexpensive courses for more mature students. Going back to student life for a year is a great idea, and you can return to the world of work at management level. अच्छा जी, आए जी। तो पहले तो इन्होंने बोला कि आप जब बड़े हो जाएं तो इसकी फ़िक्र करें, तब तक लाइफ एंजॉय करें। तो एंटोनियो सर इसके लॉक करें। बताएं जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई? इन्होंने कहा इनएक्सपेंसिव कोर्सेज। अच्छा, ओके, कहाँ रह गए? अच्छा जी, who thinks that you should study independently, combine a job, choose a course that is practical? Who thinks you should get a job immediately after leaving school? और कहीं फिट हो रहा है सर एंटोनियो? तो बताएं। और do we need to read it one more time? चलें आगे बढ़ते हैं सर। फिर आया जी एलेनोर। Nowadays it is popular for school leavers to take a break before they think about occupation or a place at a university. ओके, एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं, डोंट वरी। You need practical experience on your CV, and that can be more valuable than a diploma. Nevertheless, your studies do not have to stop just because you are working. Colleagues and universities offer options for people who want to do both. Nowadays it is popular for ठीक है सर। स्टार्ट वर्किंग एज सून एज पॉसिबल, ये लाइन कहीं सुनी सुनी लग रही है। यू शुड, ये रहा सर, सून एज पॉसिबल नहीं, ये रहा सर, सून एज पॉसिबल। क्या नाम था खातून का? एलेनोर। एलेनोर कहती हैं ये वाली बात। सर डू वी अग्री? ठीक हो गया जी, ओके। सर हमने कहा था एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे एंटोनियो को, तो पढ़ लें सर। लाइफ डजंट रियली गेट सीरियस until you hit your mid 20s. Before you try different things, get some life experience. It is only 30s when you need to get serious thinking about the further education. Many inexpensive courses. ठीक है सर। एंटोनियो कहीं और फिट होता है तो बताएं।
नहीं होता तो वापस आएंगे. चलें, लेट्स गो टू द नेक्स्ट रीडर. एलेनोर के बाद आया जर्मेन. आई थिंक वी शुड ऑल कीप लर्निंग, but don't need a piece of paper from an institution to prove it. There are many free courses. ये रहा सर, ये हमें मिल गया जर्मेन. There are many free courses. तो ये आ गया सर जर्मेन. There are many free courses, of course. Not all are good, but research will help you identify which ones is the best for you. A lot of young people get into debt because they will have to pay for their studies. With the resources available online these days, you can take control. You won't regret it. अच्छा, ये कह रहे हैं जी खुद से पढ़ लें, तो यहाँ पे भी मुझे जर्मेन नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत. ठीक हो गया. ये देखिए ना, यू कैन टेक कंट्रोल. तो ये आ गई इंडिपेंडेंट वाली बात. अब बचे सर ये आखिरी, हु थिंक्स यू शुड चूज अ कोर्स दैट इज़ प्रैक्टिकल. तो इसके लिए ना वापस चलते हैं एलेनोर के पास, नहीं पेत्रा के पास. अच्छा जी, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस वर्क. स्पेंडिंग अनपेड time in a company is a great way to get that experience. Any course that can give you that opportunity. तो सर एलेनोर, आपको एलेनोर लग रहा है तो एलेनोर देखते हैं जी दोबारा से. It is popular for schools to, okay, yes, good, practical experience. चला, let's go with एलेनोर. ठीक है जी, एलेनोर फाइनल है जी. यहाँ पे ये आ गई एलेनोर. तो ये भी सर हमने सॉल्व कर लिया. अभी भी हमारे पास 15 मिनट है इसको दोबारा से एक दफ़ा जाके चेक करने के. और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, आई बिलीव. नो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अच्छा जी, इसमें क्या करना है सर, इसको हम कहते हैं मैचिंग द हेडिंग्स. सर ये आप खुद करें, मैं आपके साथ हूँगा. तो सर इफ़ यू हैव डन इट, तो ये देखें जी 520, फिर इक्वली लॉन्ग 520 ये, फिर यहाँ पे 255 डे फ्लाइट भी है सर. तो उसके बाद है 2 फुल डेज ऑफ एक्सप्लोरेशन. तो यहाँ ना मतलब ड्यूरेशन का बड़ा फोकस लग रहा है मुझे. सर लाइफ ऑन मार्स कोई बात हुई है? नहीं हुई है सर. सर इससे रिलेटेड टॉक टू मी पीपल. नहीं हुई सर. द डिफ़िकल्टीज ऑफ लिविंग इन स्पेस, आई डोंट थिंक सो. तो सर ये चलते चलते मुझे लगता है कि ये वाला आंसर सही है. आप चेक करें. ठीक है, चलो अगर ये ठीक है लेट्स प्रोसीड फर्दर. पढ़ें जी. अच्छा, अब ये देखें सर, कंप्लीट, अचीव्ड, मैनेज्ड, they're in good health, we are ready for further tests, carried out, fully carried out, and it is finally over.
तो कंप्लीशन का बड़ा वो सर एक सेंस नज़र आ रहा है मुझे, तो क्या होना चाहिए? इज दिस द करेक्ट आंसर? बताएं जी। बिल्कुल ठीक है जी। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। सिमुलेशन एक्सरसाइज। ओके, तो सिमुलेशन इट नेवर लेफ्ट द ग्राउंड, तो ये एक्चुअल में हुआ नहीं है सर, तो ये है ये वाला। यस, व्हाट डू यू थिंक? ऐसे ही ना सर? ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. All communications between the crew and was subject to 20 minutes delay to simulate the time to take decisions from, although not all elements in space. Review. Okay. क्या सर बताएं? लाइफ ऑन मार्स इज करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक है। Okay. In addition to the discomfort पहला गया जी, of the living in confined space, the astronaut had to endure the stresses, isolation and boredom. Difficulties हैं सर काफ़ी सारी। Cope will return to a normal life, तो ये है जी क्या? डिफ़िकल्टीज। सर लाइफ ऑन मार्स तो हमने फिट कर लिया ना? हाँ जी, डिफ़िकल्टीज। और ऊपर जो हमने एक जगह लाइफ ऑफ मार्स लगाया ये, सर ये लाइफ ऑन मार्स नहीं होना चाहिए, फिर ये है इमिटेटिंग लाइफ इन स्पेस। क्या ख्याल है? क्योंकि ये देखें ना, दे वर मेड एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, वो है नहीं लाइफ वैसी, लेकिन उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक इमिटेटिंग इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 6, द डेटा कलेक्टेड बीइंग कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग फीजिबल। ठीक है जी। Some collisions in space exploration. Some scientists believe that our future lies in the stars. With the world's population exceeding 7 billion and showing no signs of slowing down, future generation may be forced to seek our new world beyond the increasingly overcrowded planet. ठीक है सर, पढ़ लिया आपने ये वाला नंबर 6? Are you done with it? Alright, तो सर मैं कहूँगा
this one. चेक करें सर, ठीक है. And the last, I hope it is, yes, last. Although the dry and dusty landscape of Mars may not be the most suitable spot for future habitation, there are other planets that could sustain human life. To date, about 700 planets similarities to Earth have been identified outside our own solar system. Kepler 20b has surface. चेक करें सर. Does that seem all right? ठीक है जी. तो सर वी स्टिल हैव 6 minutes टू स्पेयर, और इसके बीच में हमारी जो जूम वाली कम्युनिकेशन है उसने भी ठीक ठाक टाइम लिया. अब क्या करेंगे सर, अब आखिरी स्टेज देखेंगे. ये सर हमने सबमिट कर दिया. लास्ट स्टेज इंतहाई आसान है सर. उस पर अब आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए सर. ये एक लाजमी कंडीशन है, उसके बगैर सर ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्चुअली टाइप करना पड़ेगा. ठीक है. आई होप के आंसर्स आप लिख रहे हैं साथ साथ, बिकॉज वी नीड टू कंफर्म देम एट द एंड ऑफ दिस होल थिंग. ठीक है. ओके, चलें जी. The test has 4 parts and takes up to 50 minutes. Recommended time, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम समझेंगे सिर्फ. Part 1 3 minutes, Part 2 7 minutes, Part 3 10 minutes. This can change accordingly. मतलब you're not subject कि जी you're not subject to following these instructions to the word. आप इसको चेंज कर सकते हो obviously अपने टाइम के हिसाब से. अल्टीमेट गोल क्या है, पूरा पेपर होना चाहिए. ठीक है जी. चलें शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें सर. अच्छा जी. You want to join a travel club. You have 5 messages from a member of the club. Write short answers, 1 to 5 words in each message. Recommended time 3 minutes. Example, how are you? I'm fine, thanks. तो छोटे से सेंटेंस लिखना सर. What do you usually do in the morning? क्या करते हैं सर? So I brush my teeth and what do I do? Read a book, for example. ठीक है जी. Sometimes ये अब लंबी करने वाली बात है, हालांकि आपको इतना लंबा उन्होंने लिखने के लिए बोला नहीं है. Sometimes I also meditate or try to watch a film. That's it sir. ये करना सर आपने. आप कुछ और करते हैं सुबह में तो आप लिख दें, बता दें. We will change that answer accordingly. ठीक है जी. इससे एग्री करें सर सब, या do you want to change it? करेक्ट है जी. चलें, बिल्कुल सही है. इट्स ओके. हाँ बिल्कुल ठीक है सर. व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस? अब क्योंकि ये मॉर्निंग रूटीन से चल रहा है तो आई थिंक दे आर आस्किंग अबाउट लाइक इनसाइड द होम व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस. आई मीन माई फेवरेट प्लेस इज़ माई रूम वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम. आई फील पीसफुल देयर. एक्सक्यूज मी. आई फील पीसफुल एंड काम देयर. व्हाट इज़ योर आंसर? Okay. My favorite place is my room where I am completely surrounded by my books. ठीक है जी. अच्छा ये नहीं करें सर, खाली माई रूम नहीं लिखें. उन्होंने एक
सेंटेंस में सवाल पूछा तो आपको मतलब सेंटेंस में ही जवाब देना, यू कैन नॉट अफोर्ड टू आंसर इन अ फ्रेज, वो फिर आपका आंसर ख़राब हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके आपको। व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल? जी सर। पाक आर्मी जिंदाबाद सर, मारखोर जिंदाबाद। हाँ जी सर, टाइम नहीं है तो अभी ऐसे, अच्छा ठीक है, कोई बात। वुल्फ, बिकॉज, ठीक है, ओके सर। कोशिश करा करें, देखिए मैं इसके ऊपर ना आइल्स वाली लॉजिक फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइल्स में ना जो आपको सवाल पूछता है वो एंड में पूछता है, लिखा होता है ब्रैकेट में वाई, तो डोंट लेट देम आस्क वाई, एटलीस्ट उसको एक बिकॉज दे दो, ताकि मतलब उसको लगे यार हाँ इसको जवाब पता है और इसने मतलब कमांड भी है इसकी इंग्लिश पे या लैंग्वेज पर। हाँ एग्जैक्टली, और वो नहीं लगे ना कि मतलब स्कूल का बच्चा सॉल्व कर रहा है पेपर। बिल्कुल ठीक है, बताएं सर। माय सेंटेंस बनाया सर, माय फेवरेट। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए तो इग्नोर करें, बाद में सही कीजिएगा उसको। इज वुल्फ बिकॉज इट हैज सर आसान कर लेते हैं, इट हैज लीडरशिप क्वालिटीज, खत्म, लीडरशिप क्वालिटीज। तो यार उसकी जगह फिर शेयर लगाओ, मतलब ये तो वो है ना पैक में रहता है, सोशल है, इट हैज अ सोशल स्ट्रक्चर, वुल्फ हैज अ सोशल स्ट्रक्चर ना, जो शेर है वो लीड करता है ना सबको। बस ठीक है, सही है सर, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है ये सर, ये भी अच्छा आंसर है सर। माय फेवरेट एनिमल इज वुल्फ बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स इट्स पैक, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे? सर द वेदर इज प्लेजेंट and a bit cloudy, ठीक हो गया जी, बस इतना सा काम करना है सर, मार्क्स सिक्योर करना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर? सर सॉरी, हम पाकिस्तानी हैं तो हम सर्दी जो लिखेंगे ऑब्वियसली। सर माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर इज, नहीं कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी यार, अपना आंसर खुद बना, is Eid. Should we say Eid because Eid is not specific to a time of the year ना, वो घूमती रहती है, वो लूनर कैलेंडर से चलती है, तो I don't think it would be a nice answer जी। हाँ सॉरी, नहीं वो फेस्टिवल नहीं पूछ रहा, अगेन ईद और 14th अगस्त इज नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल, इट इज़ नॉट अ टाइम ऑफ द ईयर। तो अब मुझे ना सीजन्स के साथ लेके चलो, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मूनसून, दैट्स अ गुड आंसर। चलें माय ईद टाइम, चलें जी फेस्टिवल लेके चलते हैं, लेकिन वी वुड चेंज दैट ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। इज ईद, ईद इज़ अ फेस्टिवल, हाँ ठीक है, लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट टारगेटिंग द स्पेसिफिक क्वेश्चन ना। ट्रू ट्रू, तो हम इसको लेके चलते हैं सर अथर वाले आंसर के साथ। माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर इज मूनसून, ये हर साल आता है सर। एज द वेदर इज रियली नाइस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है जी, ये हो गया सर हमारा पहला सेक्शन। सर देखें फ्री के मार्क्स रखे हैं सर आगे आपने। अच्छा यहाँ पे आप ईद और मॉनसून में नहीं लड़िएगा, एग्जामिनर के सामने जब आप आएंगे आपने अपना आंसर खुद देना है, तो यू कैन गिव योर ओन ओपिनियन ओवर देयर। यहाँ तक कोई मसला सर? अतर, उमैर, यहाँ तक सब ओके जी? ठीक है जी, यहाँ तक ओके। You are a new member of the travel club. Fill in the form. Write in sentences. Use 20 to 30 words. Recommended. Recommended time 7 minutes लगाने हमने। 45 में क्या लिखना है जी? Please tell us why you are interested in travel. जी सर।
I am interested in traveling because it gives me an opportunity to meet new friends, explore amazing cultures. New बार बार नहीं यूज़ कीजिएगा. Amazing cultures and traditions. हो गया ना ऊपर friends आ गए. Traditions. It also allows me to try out new dishes and cuisines from all over the world. ठीक है जी. और लंबा खींचना सर. Yes. Nature's beauty, natural beauty. Yes, you can talk about that. It establishes an eternal bond between me and the. अब यहाँ से आगे नहीं सर हम लिख पाएंगे. देख रहे हैं यहाँ से हम इस लिमिट के अंदर रहते काम करना. तो उन्होंने कहा सर 20 to 30, हमने 36 लिख के दे दिया. आई थिंक दैट्स अ फेयर इनफ आंसर. हाँ, जहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, वर्ड लिमिट मैच हो रही है. लेट्स एक्सक्लूड दैट माय फ्रेंड. ठीक है जी. It also lets me capture the natural beauty. चलेंगे एग्जैक्टली 44 पे वहाँ के लॉग होगा. ठीक है जी. अगर टाइपिंग आती है तो दिस इज़ लाइक अ चाइल्ड्स प्ले. अगर आप अच्छे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ वॉक इन द पार्क. ठीक हो गया. अच्छा, अब अगले सेंटेंसेस हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं सर, हम उनको बस देख रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं. एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अच्छा जी, फिर आता है जी, यू आर कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन विद अदर मेंबर्स ऑफ द क्लब. क्लब पे जब जाते हैं सर तो सारे आपके दोस्त नहीं होते. वहाँ पे आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कम से कम बल्कि नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आपने जो आंसर देना है वो फॉर्मल कर देना है. ऑल्सो व्हेन यू गो टू कराची जिमखाना, व्हेन यू गो टू एनी ऑफिसर्स मेस, व्हेन यू गो टू क्या नाम है, कैप्टाबाद की लॉन्ग कोर्स की किसी ऑफिसर्स मेस में जाता है, सो यू हैव टू फॉलो रूल्स, रेगुलेशंस एंड एटिकेट्स ऑफ दैट प्लेस. आप वहाँ पे ना मतलब अगर क्लब्स के रूल में है कि भाई जूते पहन के आना है तो और आप सैंडल्स पहन के चले जाते हो, दे विल नॉट सर्व यू फूड. दैट एक्चुअली हैपन्स. SOPs फॉलो करनी पड़ती हैं. यस. सो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन लेके चलेंगे. ठीक है जी. Reply to their questions, write in sentences, use 30 to 40 words per answer, recommended time 10 minutes. Hi, welcome to the club. Can you remember the first time you went on a journey by yourself? What was it like? So I traveled to Skardu. It was a fantastic place. It was really fascinating for me and I got to experience myself for the very first time. Yes. The topic will change obviously. हाँ, topic will change होगा ना यार. यही same topic एग्जाम में थोड़ी आएगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बिल्कुल ठीक है. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है बेसिकली. यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि जी ऐसा एक्सपीरियंस था, वैसा एक्सपीरियंस था. उसकी टेक्निक्स नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे क्या होगा. अच्छा जी, आगे मिगेल कहते हैं कि वेलकम, व्हाट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट इन योर कंट्री. तो यहाँ सर वो जो बचपन में याद किया हुआ ना पाकिस्तान ब्यूटीफुल प्लेस वाला ऐसे, उसको सर थोड़ा सा रिफ्रेश करके थोड़ा सा अपग्रेड करके वी विल राइट इट डाउन हियर बट इन 60 वर्ड्स. सही है सर. सर, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग जर्नी यू हैव बीन ऑन. Sir, what was the most exciting journey that you traveled or that you had? Please elaborate. 60 words at least. At least यार, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा.
सही है। अब इसके ना आप क्या करेंगे, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं छोटा सा, तो सिर्फ आपने कराची लिखा, अगेन टाइम टाइप नहीं कर सकते हम यहाँ पे पूरे का पूरा, लेकिन कराची लिखो, साथ में ना 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स बना लो। यार कराची में गए थे तो क्या किया था, कराची में गए थे तो मॉल गए थे, कराची में गए थे तो वहाँ का समुंदर देखा था आपने, कराची गए थे तो वहाँ पे खाना खाया था, एंड दैट्स इट। 3 पॉइंट्स बनाएंगे सर, एक पॉइंट को आप 10 वर्ड्स देंगे, आपके 60 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। एंड माइंडेड ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है सर, तो ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है आपके लिए। मतलब आपको अगर लिखना आता है तो आपके लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़े सर। अब क्या करना है जी, यू आर अ मेंबर ऑफ द ट्रैवल क्लब, यू हैव रिसीव्ड दिस ईमेल फ्रॉम द क्लब, तो ईमेल का रिस्पॉन्ड देना जी। ईमेल में क्या सिचुएशन है, वी आर राइटिंग यू टू टेल यू दैट द फेमस ट्रैवल राइटर मिस्टर डेविड प्राइस विल अनफॉर्चुनेटली नॉट बी एबल टू अटेंड द नेक्स्ट क्लब मीटिंग। तो सर पहले तो हम बोलेंगे जी बड़ा अफसोस हुआ, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आए और हमने उनसे अपनी बुक साइन करवानी थी, लेकिन कोई बात नहीं। Although Mr. Price will not be there to sign copies, his new book Around the World in 80 Days, members of the club will be able to buy a copy of the price for £25. अच्छा जी, इफ़ यू वुड लाइक टू रिज़र्व अ कॉपी, आप बता देंगे जी रिज़र्व कर दें, यानी तीनों पॉइंट्स का जवाब दे दें, आपकी मेल तैयार हो जाएगी। आपने लिखने हैं 75 वर्ड्स, बट इसके साथ साथ आपको इसी का एक कॉरेस्पॉन्डेंस और करनी होगी जी। राइट एन ईमेल टू द प्रेजिडेंट ऑफ द क्लब, राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड व्हाट यू थिंक द क्लब शुड डू। आपने कुछ रिकमेंडेशंस देनी है, और आई बिलीव रिकमेंडेशंस देना पाकिस्तान में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सर, हमारा नेशनल गेम है वो, है ना। एडवाइसेस और रिकमेंडेशंस देना तो हमारा नेशनल गेम है ना। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। तो क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे और इस पे सर थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, अगेन बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे और बताएंगे कि जी ये आपको कर लेना चाहिए ताकि ये नेक्स्ट टाइम ना हो। सर जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेंगे हमारा हो जाएगा पेपर डन। सर यहाँ तक आई होप कि आपका कोई मसला मसाइल नहीं होगा, बताएं जी। नहीं है जी, चलो ज़बरदस्त हो गया। तो हम क्या करेंगे सर, हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसको लेके चलेंगे। आज हमने सिर्फ देखा कि पेपर है क्या, कितने मार्क्स का है, किस तरह का टेस्ट आ रहा है हमारे पास। आप नेक्स्ट क्लास से, कल से जब भी हम बात करेंगे तो वी विल बी एबल टू रिवाइज और डिवाइज सम प्लान एंड स्ट्रैटेजीज टू कवर दीज टॉपिक्स। हम अपनी राइटिंग साथ साथ करेंगे, और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क, ताकि हम इसको एड्रेस कर सकें जी। राइटिंग बहुत बुरी है तो लास्ट पार्ट में बहुत डिफ़िकल्टी, नहीं कुछ नहीं होता यार, हम इसको आसानी से मेंटेन कर लेंगे। वी हैव अ गुड 2 months विद अस, 2 to 3 months विद अस, राइट। सर अब से आपकी क्लास रोज़ होगी, रोज़ नहीं बेटा, हम इसको लेंगे ऑल्टरनेटिव डेज में, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डेज में ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम एक लेट्स से कुछ डिस्कशन करते हैं, तो घर पे फिर उसका होमवर्क या उसकी जो सेल्फ प्रैक्टिस है ना वो घर से करनी होगी हमें, ताकि हम उसको थोड़ा सा मतलब सिर्फ अपलोड ही नहीं करें अपने पास, हम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी लेके आ जाएं, ठीक है। तो इट विल नॉट बी एवरी डे, इट विल बी आफ्टर एवरी अदर डे, और जो बीच में जो आपका टाइम मिलेगा उसमें आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। कुछ टास्क होंगे, कुछ असाइनमेंट्स होंगे, वो कंप्लीट करना। और कोई सवाल जी, और कोई सवाल? आज की क्लास से रिलेटेड तो कोई असाइनमेंट नहीं है, लेकिन हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आपको मैं बुक्स बता दूंगा, हम इसको साथ में लेके चलेंगे। अच्छा, हमारी जो क्लास होगी ना वो होगी बेसिकली 3 सेक्शन में।
हम कोशिश करेंगे कि अपनी क्लास लेक्चर हमारी अगर 1.5 घंटे की हो रही है तो हम 30 मिनट जो है वो वोकैबलरी को दे दें, 30 मिनट ग्रामर को दे दें और 30 मिनट की हमें राइटिंग करनी है। उसके लिए अगर आप कराची में हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप फिज़िकल आके क्लास लें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऑनलाइन इज़ ओके, बट ऑनलाइन में वैसी आपकी जो है ना वो ग्रिप नहीं हो पाती है, ठीक है। सर किसी कैन वी अनम्यूट द स्टूडेंट्स क्या? अच्छा नेक्स्ट क्लास से, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये करेंगे कि हम अपनी जो आखिरी का एक सेशन रखेंगे उसमें आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अनम्यूट योर माइक एज वेल, ताकि आप मुझसे बात कर सको, ठीक है। आपको आपके सामने भी देखें हैंड रेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कैन यू टेल मी? आप अपने जूम पैनल पे जहाँ कंट्रोल्स हैं जी, तो आप हैंड रेज करिएगा प्लीज़ उमर। कर दिया तो नज़र क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? ओके नेक्स्ट क्लास से हम इसकी भी सेटिंग, अच्छा ठीक है जी, उमर ने कर दिया, साद ने कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि जैसे ही जिसका सवाल होगा वो हैंड रेज कर देगा, और जैसे यू कैन लोअर योर हैंड, तो जैसे ही आपका जो सवाल एड्रेस हो जाएगा उसके बाद सॉरी सवाल आपका होगा, आप हैंड रेज करेंगे एंड आई विल गिव यू एन ऑप्शन टू अनम्यूट। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी कैन म्यूट यू बैक, ठीक है। लेकिन बीच में ना चलते चलते क्लास में सवाल नहीं करेंगे, हम रेज करेंगे हैंड एंड देन वी विल आस्क क्वेश्चंस। ठीक हो गया? और कोई सवाल जो अभी भी दिल में है और तंग कर रहा है? ऑल ओके? चले सर, विद दैट लेट्स कंक्लूड द क्लास। थैंक यू सो मच और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।